वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशंस, जो पब्लिश करते हैं लार्जेस्ट रेंज ऑफ चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स इंक्लूडिंग many solved sample question papers for various IGNOU courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code BPSC 132 Indian Government and Politics. Assignment 1. Answer the following in about 500 words each. Each question carries 20 marks. Let's discuss question number 1. Discuss the basic structure, doctrine, and critically evaluate its impact. Let's discuss the answer. The basic structured doctrine emerged from the Supreme Court judgment in March 1973 on the Kesavan Bharti versus State of Kerala case. The Supreme Court ने order किया जो basic structure था constitution का, that is fundamental rights along with the judicial review, secularism and parliamentary democracy को change नहीं किया जा सकता. इस केस में केशवन भारती सुप्रीदगवलु, लीडर ऑफ मैथ इन केरला, ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट को द ऑर्डर ऑफ केरला गवर्नमेंट अबाउट टेकिंग ओवर प्राइवेट लैंड एज पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम. क्लासिकल इवैल्यूएशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के पॉजिटिव इम्पैक्ट को डिस्कस करते हैं. इसने सेफगार्ड किया अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म. स्ट्रक्चर्ड डॉक्ट्रिन ने एक्ट किया as a check on Parliament's power, preventing against majoritarian government from altering essential democratic principles. Second, preservation of constitutional values. Third, judicial review and balance of power. And next is continuity and stability. Criticism discuss करें तो judicial overreach, ambiguity, undermining parliamentary sovereignty, stagnation in constitutional reform, potential for conflict. इसका इम्पैक्ट डिस्कस करें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने प्रोफाउंड किया अपने इम्पैक्ट को ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, साथ में इंश्योर किया कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंटैक्ट रहें. जो डॉक्ट्रिन का रोल था इन सेफ गार्डिंग सिविल लिबर्टीज ड्यूरिंग पॉलिटिकली टर्बुलेंट टाइम्स, स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी, ने शोकेस करी अपनी इंपॉर्टेंस को डेमोक्रेसी को और साथ में सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए. Moving on to the next question, discuss the parliamentary mechanism employed to control the executive. Let's discuss the answer. Parliamentary privileges ने अश्योर किया फ्री और एफिशिएंट फंक्शनिंग को ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. दो टाइप के privileges members के लिए रखे गए, which were in freedom of speech in the houses, immunity from proceedings in any court in respect of anything said or any vote, immunity or liability in respect of publication by or under authority of either House of Parliament, freedom from arrest in civil cases for duration at the session of period of 40 days before and after the session, and exempting from attending a witness in a court. पार्लियामेंट का एक सीरीज है ऑफ कमिटीज जिसमें नेसेसरी पावर्स को स्क्रूटिनाइज किया गया ऑफ द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि एरिया ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस. टू कमिटीज विच कीप एन आई ऑन द एग्जीक्यूटिव आर पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड एस्टिमेट्स कमिटी. Let's discuss assignment 2. Answer the following questions in about 250 words each. Each question carries 10 marks. Question number 1. Discuss the Marxist perspective on the study of Indian politics. Marxist के perspective को Indian politics की study के ऊपर discuss कीजिए. Let's discuss the answer. The basic tenets of Marxism ने guide किया Marxist approach को to Indian politics. उनकी अप्रोच अप्लाई करती है प्रिंसिपल ऑफ डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, और एक्सप्लेन करती है क्लासिक स्ट्रगल के नेचर को और सजेस्ट करती है किस तरीके से क्लास एक्सप्लॉयटेशन को एंड किया जा सकता है. डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म कहता है कि क्लासेस एक सोसाइटी के तरीके से रहती हैं. द रिलेशन बिटवीन क्लासेस को व्यू किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एंड सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. मार्क्सिस्ट की अप्रोच टॉक करती है दो रिलेशंस के बारे में बिटवीन क्लास एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जैसे कि स्टेट, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर. क्लास एक बेस है एंड अदर एस्पेक्ट जैसे स्टेट, कल्चर, रिलीजन सुपर स्ट्रक्चर है.
मार्क्सिस्ट की अप्रोच को दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच जो कहती है बेस डिटरमाइन करता है सुपर स्ट्रक्चर को, एंड नेक्स्ट इज नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो कहती है बेस सुपर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करता और बाद में उसका एक रिलेटिव ऑटोनॉमी लाई करता है। Let's discuss the question number 2. Elucidate the powers and functions of the Speaker of Lok Sabha. लोकसभा के स्पीकर की पावर और फंक्शन को एक्सप्लेन करते हुए elucidate कीजिए. Let's discuss the answer. The Speaker of Lok Sabha does not have affiliation. लोकसभा के स्पीकर का कोई एफिलिएशन नहीं होता टू एनी पार्टी और वो एक्ट करते हैं एक इम्पार्शियल मैनर में. वो इंश्योर करते हैं एक सफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस. वो डिसाइड करते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर को, इंटरप्रेट करते हैं और अप्लाई करते हैं रूल्स ऑफ द हाउस को. ही इज द गार्जियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस. वो सर्टिफाई करते हैं कि वेदर एक बिल लाइक मनी बिल एंड अथॉन्टिसेट करते हैं कि हाउस को पास किया जाए द बिल बिफोर इट इज प्रेजेंटेड टू द राज्यसभा और द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट. He also decide वो ये भी डिसाइड करते हैं on the acceptability of question, motion and resolutions. जो मेन की फंक्शंस है लोकसभा के स्पीकर का इज टू प्रिसाइड ओवर द सेशंस ऑफ द लोकसभा, ऑर्डर को मेंटेन करना और डेकोरम ड्यूरिंग डिबेट्स को मेंटेन करके रखना. स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है डिसाइड करने की कि कौन बोलेगा, द ड्यूरेशन फॉर विच मेंबर्स कैन स्पीक एंड द सब्जेक्ट टू बी डिबेटेड. इन सब में स्पीकर इंश्योर करते हैं इम्पार्शलिटी को और सब मेंबर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी अफिलिएशन. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मनी बिल? मनी बिल क्या है, उसके रोल और इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कीजिए इन द इंडियन पार्लियामेंट. लेट्स डिस्कस द आंसर. बिल जो रिलेट करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को उन्हें फाइनेंस बिल्स कहा जाता है. फाइनेंस बिल्स मनी बिल्स नहीं होते, दोनों आपस में डिफरेंट है. स्पीकर ऑफ द लोकसभा को सर्टिफाई करते हैं एक बिल को एज द मनी बिल. अ मनी बिल इज पहले इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन द लोकसभा. आफ्टर दैट इट इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा. पहले उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस और पास किया जाता है और बाद में राज्यसभा में पेश किया जाता है. Even if the Lok Sabha does not accept any of the recommendation, money bill को डीम रखा जाता है to have been passed by both the houses without any change. रूल्स एंड इंपॉर्टेंस डिस्कस करें तो ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को, स्ट्रेंथन करता है लोकसभा के रोल को और एफिशिएंट पैसेज ऑफ फाइनेंशियल प्रपोजल्स को रखता है. लेट्स डिस्कस असाइनमेंट 3. Answer the following question in about 100 words each. So here the word limit is 100 and each question carries 6 marks. Question number 1. Define judicial review and explain its importance. Let's discuss the answer. Judicial review refer करता है revision को of the decree or sentence of an inferior court by a superior court. कोर्ट के पास पावर होती है वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटर को टेस्ट करने की और बाकी गवर्नमेंटल एक्शन को एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कंडक्ट करने की. इंग्लैंड में द पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है सुप्रीम अथॉरिटी को क्योंकि कंट्री के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. कोर्ट्स कैन नॉट रिव्यू द लॉज पास. कोर्ट्स जो है पास किए गए लॉ को नहीं रिव्यू कर सकते बाय द सोवरेन पार्लियामेंट. यूएस में जुडिशरी एग्जामिन करती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ऑफ द लेजिस्लेशन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस. इंडिया में कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स को विच आर इनवैलिड. सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करता है दैट नो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस और अमेंडमेंट वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स शुड बी वैलिड. इस मेथड को ऑफ कंसिडरिंग ओल्ड ट्रांजैक्शंस वैलिड एंड फ्यूचर वंस इनवैलिड कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग. 1917 में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया सम ऑफ द इंदिरा गांधी पॉपुलिस्ट मेजर लाइक द अबॉलिशन ऑफ privy purses of the former princes and nationalism of the Banco, the Prime Minister was to assert the Parliament supremacy. Let's discuss next question. How does the concept of collective responsibility operate in the Indian parliamentary system? Let's discuss the answer. The Council of Ministers collect करते हैं responsibility को, which means all the ministers are equally responsible. सारे ही ministers equally responsible है for each and every act of government. Government के हर act के लिए. Each minister accept करता है और agree करता है to share responsibility for all the decisions of the cabinet. डाउट्स और डिसएग्रीमेंट को कन्फाइन किया जाता है टू द कैबिनेट रूम.
एक बार जब डिसीजन ले लिया जाता है तो उसको सपोर्ट किया जाता है और कंसिडर किया जाता है पूरी गवर्नमेंट के फाइनल डिसीजन को। इफ अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, यदि कोई मेंबर गवर्नमेंट पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता, he is morally bound to resign from the council of ministers. If the Council of Ministers is formed out of a coalition of various political parties, एक minimum common program build किया जाता है for maintaining the solidarity of the ministry. Let's discuss next question. What is question hour in the Indian Parliament and what purpose does it serve? Indian Parliament में question hour क्या है और वो क्या purpose serve करता है? Let's discuss the answer. Every sitting of the Parliament start होती है question hour से, जो available रहता है for asking questions, पूछने के लिए और जवाब देने के लिए, unless the presiding officers are otherwise direct. सारे मेंबर्स irrespective of their party affiliations के पास राइट होता है क्वेश्चंस पूछने का. The real object of the member in asking the question is to point out the shortcomings of the administration, to ascertain the thinking of the government अपनी पॉलिसी बनाने में और कब तक पॉलिसी ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी. अगर एक मेंबर सेटिस्फाई नहीं होता दिए गए जवाब से, या फिर अगर उसे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो वो प्रिसीडिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर अ डिटेल्ड डिस्कशन. पर्पस ऑफ क्वेश्चन आवर को डिस्कस करें तो द प्राइमरी पर्पस इज अकाउंटेबिलिटी. ये एनेबल करता है मेंबर्स को होल्ड करने में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बाय सीकिंग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन वेरियस पॉलिसीज, इश्यूज एंड एक्शंस. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी. सवाल जवाब जो पब्लिक में किए जाते हैं फोस्टर करते हैं गवर्नमेंट के ऑपरेशंस की ट्रांसपेरेंसी को एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को. पॉलिसी की क्लैरिफिकेशन को हाईलाइट करती है, मेजर इश्यूज को, चेक और बैलेंसेस को मेंटेन रखती है. Let's discuss next question. Briefly describe the procedure for removing a judge of the Supreme Court of India. जो ओरिजिनल jurisdiction है of the Supreme Court, ये अप्लाई करता है parties को to the distribute should be the units of federation. Supreme Court के पास extensive original jurisdiction रहती है as the protector of fundamental rights. Citizens के पास right है Supreme Court तक directly move करने का for the enforcement of any fundamental right enumerated in Part 3 of the Constitution. Supreme Court के पास power रहती है to issue writs includes habeas corpus, quo warranto, prohibition, mandamus. Let's discuss next question. Explain the dominant party system in Indian politics. Indian politics में dominant party system को explain कीजिए. Let's discuss the answer. इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेंट पार्टी सिस्टम रेफर करता है एक पॉलिटिकल सिस्टम को जहां पर एक पार्टी कंसिस्टेंटली डोमिनेट करती है इलेक्शंस को ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, विनिंग अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ सीट्स, व्हाइल ऑपोजिशन पार्टी वीक और फ्रेगमेंटेड रहती है. ये डिफरेंट है फ्रॉम वन पार्टी सिस्टम एज अदर पार्टीज डू एग्जिस्ट एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट दे स्ट्रगल टू सीरियसली चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी. Dominance of the Congress as the ruling party did not mean absence of the competition. The numerous party opposition में provide करती है competition, हालांकि such competition result नहीं करता एक effectively challenging dominant position को ruling party की. Due to their inability to provide the alternative to the ruling party or even to challenge its position of dominance, opposition party traditional role of opposition को play नहीं करती. On the contrary, उनका role limited रहता है to that of the constantly pressurizing, criticize करना ruling party को. The party system therefore work करता है basis of consensual model पर, कि एक political है of broad consensus round the political value जो शेयर करी जाती है सारे political actors द्वारा, whether operating from within the ruling group or from the opposition. इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com. अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस 15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर. इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.